हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन के बारे में। ह्यूमन आई चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, और उस चैप्टर में हम लोगों ने पहले बेसिक्स कवर किया, बेसिक्स ऑफ ह्यूमन आइज कवर किया। उसमें हम लोगों ने ह्यूमन आइज के कंस्ट्रक्शन के बारे में सीखा। वी हैव लर्नड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आइज। वी डिस्कस्ड इन ब्रीफ अबाउट रॉड सेल, कॉन सेल्स एंड पावर ऑफ एकोमोडेशंस। कैसे सिलियरी मसल्स के जो है पोजीशंस, जब सिलियरी मसल्स का जो है एडजस्टमेंट्स होता है बच्चों, तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स वह का एडजस्टमेंट होता है। और फिर कैसे जो है आई लेंस डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट पोजीशन अपने फोकल लेंथ को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, so that the image of the object should get formed at the retina. So this all we have observed in the previous videos. So from this video we are going to learn through this form. I hope this form will be helpful for you, because in this form I am going to list out all the points in the presentation like this. And I hope you will be liking such a way of representation. And definitely along with this presentation I will be explaining each and every point, and I will be using a writing skill also here, so that this video should be clearly understandable. I hope कि बच्चों, अगर आप मेरे क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करेंगे, आप इफ़ यू विल गो थ्रू माय क्लासेस रेगुलरली, you will easily be able to catch all the concepts, and it will be really very helpful. So without wasting our time, let us come to the point. So defect of vision and their correction. बच्चों, ह्यूमन आइज में क्या क्या पॉसिबल डिफेक्ट्स हो सकते हैं विजन में, और उसके करेक्शंस के लिए हम क्या क्या टेक्नोलॉजी या मेथड्स यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो. सो देयर आर बेसिकली थ्री कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन. बेसिकली तीन तरह के डिफेक्ट्स होते हैं बच्चों विजन में, एंड दे आर, और दीज आर, फर्स्ट वन इज मायोपिया. फर्स्ट वन इज मायोपिया. सो सेकंड वन इज हाइपरमाइट्रोपिया, एंड थर्ड वन इज प्रेसबायोपिया. सो बच्चों, मायोपिया जो होता है, दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस. Likewise, hypermetropia, this is known as long sightedness or far sightedness, and third one is presbyopia. So we will be discussing each and every defects in brief one by one, but at this stage there are basically three defects, or three defects of vision that we have listed here. And these three defects what we are talking here, these are the refractive defects of vision, because they are caused by the incorrect refraction of light rays by the eye lens. But this point is very important. Why we call these defects as refractive defects of vision? Because they are caused by the incorrect refraction of light rays by the eye lens. बच्चों, एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम आई लेंस के थ्रू लाइट रे का रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, तो whenever we look at any object, the light rays which are getting reflected from that object is getting incident onto our eye lens, and that incident light rays, after refraction from the eye lens, forming the image of the object at the retina of our eye, then only we are able to see the image. Let us consider this is the eye lens. So this is the eye lens, and this is the location of retina. This is the location of retina in our eye. So this is the location of retina in our eye. So what is happening, actually whatever the parallel rays it is coming, after refraction they should meet each other at retina only, then the image of the object will be formed. But why these defects are coming into picture? The reason is, after refraction they are unable to meet at retina. They are either meeting before retina, or they are meeting after or beyond retina, and that is what called the incorrect refraction of light ray. That is called incorrect refraction of light ray. So refraction means what? Bending of light rays when it passes from, or when it is getting refracted through the lens. So three basic problems, or three common defects.
and these are known as refractive defects of vision and they are caused by the incorrect refraction of light rays by the eyes. बच्चों आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आगे हम लोग बात करेंगे one by one. We have to talk. So right now we are discussing about myopia. So myopia is also known as short sightedness or near sightedness. बच्चों निकट दृष्टि दोष कहते हैं मायोपिया को इन हिंदी, निकट दृष्टि दोष. सो व्हाट इज एक्चुअली मायोपिया एंड what happens to our eyes when such defects are coming into picture in our eye? So let us talk about that. Myopia is that defect of vision due to which a person cannot see the distant object clearly, though he can see the nearby objects clearly. बच्चों जब मायोपिया का प्रॉब्लम किसी भी आईज में, किसी भी पर्सन के आंखों में होता है बच्चों, तो he cannot see द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली. बच्चों दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, दूर की वस्तु हमें साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है. ऑन द अदर हैंड हमें नज़दीक की वस्तुएं क्लियरली दिखाई पड़ती हैं, साफ साफ दिखाई पड़ती हैं. मायोपिया जब किसी भी आई में होता है, नियर साइटेडनेस जब प्रॉब्लम आता है, शॉर्ट साइटेडनेस प्रॉब्लम जब किसी भी आईज में आता है बच्चों, तो हमें नज़दीक की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं, जो फार पॉइंट है बच्चों, जो नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी होता है, हम लोग इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, नॉर्मल आई इन्फिनिटी तक देख सकता है, लेकिन मायोपिक आई जो है उसका फार पॉइंट अफेक्टेड होता है, दूर की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं. अगला पॉइंट यहाँ पर वही है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हो गया कवर. सेकंड पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे द फार पॉइंट. जो फार पॉइंट होता है बच्चों, फार पॉइंट ऑफ एन आई सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज लेस देन इन्फिनिटी. जिनको मायोपिया हो जाता है उनका जो फार पॉइंट होता है बच्चों वो लेस देन इन्फिनिटी होता है. सच पर्सन कैन सी क्लियरली ओनली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स. कुछ ही दूरी तक वो क्लियरली देख पाते हैं. ठीक है बच्चों. सो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मायोपिया के होने का कारण. व्हाट आर द मेन कॉज? सो द डिफेक्ट ऑफ आई कॉल्ड मायोपिया इज caused due to two reason. First one is ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस. बच्चों जैसा कि हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू 1/f. सो पावर हाई होता है, पावर अगर हाई है इसका मतलब क्या है, फोकल लेंथ जो है वो होगा वह लो होगा, फोकल लेंथ कम होगा. सो व्हेन वी हैव द डिफेक्ट ऑफ आई कॉल्ड मायोपिया इज caused ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस. ये जो आई लेंस है बच्चों यहाँ पर इस डायग्राम में, इसका पावर जो है बहुत ज़्यादा होता है. पावर ज़्यादा होता है कहने का मतलब है क्या, शॉर्ट फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ कम होगा. ठीक है. सो जब यह प्रॉब्लम होता है, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिससे कि पावर ऑफ लेंस ज़्यादा हो, फोकल लेंथ कम है, तो मायोपिया का केस अराइज होगा. या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी होता है बच्चों, ये जो हमने आई बॉल यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये जो डायग्राम है यहाँ पर आई बॉल का, सो दिस इज कॉल्ड आई बॉल, दिस इज कॉल्ड आई बॉल. तो ये जो आई बॉल है बच्चों, अगर हम इसकी बात करें, आई बॉल, लेट अस राइट इट प्रॉपरली. साफ साफ अच्छे से लिखते हैं बच्चों ताकि आपको समझ में आए. ये जो आई बॉल है बच्चों, ड्यू टू आई बॉल बिंग टू लॉन्ग, ये आई बॉल लंबा हो जाता है बच्चों, लॉन्ग हो जाता है, जिसके कारण यह डिफेक्ट्स अराइज होता है. बच्चों ये जो डायग्राम हमने यहाँ पर आपके लिए रिप्रेजेंट किया है, इस डायग्राम को आप समझ सकते हैं. ये डायग्राम बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए. जैसे कि जब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं बच्चों, तो लाइट रे जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहां से जब लाइट रे आता है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा. तो दीज रेज, लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम लार्ज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट and they are getting incident onto the eye lens once it enters through iris. iris आँख का वह हिस्सा होता है बच्चों जहाँ से कि लाइट रे हमारे आंखों में एंटर करता है, और फाइनली जब आई लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के यहाँ पर ये जो है मिल रहा है, तो रेटिना पर नहीं मिल रहा है बच्चों, यह इसे रेटिना पर मिलना चाहिए था, बट ये कहाँ मिल रहा है, बिफोर रेटिना मिल रहा है, रेटिना से पहले मिल रहा है. तो जब तक कि ये रेटिना पर नहीं आएगा तब तक हमें इमेज का कोई सेंसेशन नहीं होगा. सो दिस फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ मायोपिक आई. ये जो ए डायग्राम है बच्चों, डायग्राम नंबर ए जो है, ये मायोपिक आई का केस है. मायोपिक आई में ऑब्जेक्ट का, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का, दूर के ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो उसका इमेज बिफोर रेटिना बनता है, जो रेटिना पर नहीं बनता है, और जिसकी वजह से हमें दूर का ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं पड़ता है. ठीक है.
दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ता है। दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे तो आपको डायग्राम समझने में दिक्कत आएंगी, तो आप इसे अलग से इधर लिख लीजिए। दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है या पड़ता है। ठीक है बच्चों, सो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर दूसरा डायग्राम देख रहे हैं। जब हम दूर के ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते हैं, जिसका मायोपिक आई का जिसको प्रॉब्लम है बच्चों, जब उसी आई के सामने जो दूर का ऑब्जेक्ट है, जब हम उसे नजदीक लाते हैं बच्चों, लेंस के नजदीक लाते हैं, तो क्या होता है कि जब नजदीक लाते हैं तो उसी ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे रेटिना पर, यहाँ से लाइट रेज नजदीक जब आ गया ऑब्जेक्ट, तो ये लाइट रेज यहाँ से ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हुआ, इंसिडेंट हुआ और रिफ्रैक्ट होकर के यहाँ पे रेटिना पर इमेज बन गया। तो जो ऑब्जेक्ट दूर था, जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था, जब उसे नजदीक लेकर के आ रहे हैं तो उसका इमेज रेटिना पर बन रहा है और वो हमें क्लियरली अब दिखाई देने लग गया। सो वह डिस्टेंस जहां तक कि हमें क्लियरली दिखाई पड़ता हो मायोपिक आई के केस में, उसे हम लोग कहते हैं बच्चों फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई। सो सेकंड केस का ये जो डायग्राम था, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। अब थर्ड डायग्राम में हम लोग सीखेंगे बच्चों कि हाउ टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम ऑफ मायोपिया। तो एक्चुअल में क्या करते हैं बच्चों, हम लोग इन फ्रंट ऑफ आई लेंस एक कॉनकेव लेंस को प्लेस करते हैं, यूज करते हैं। और कॉनकेव लेंस को जब हम यूज करते हैं तो जो इनफाइनाइट, जो बहुत लार्ज डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है जिसे हम देख रहे होते हैं, वहां से पैरेलल रेज आता है और इस डाइवर्जिंग लेंस से डाइवर्ज होके और फिर जा करके यहाँ पर आई लेंस पर जो है इंसिडेंट होता है, एंड देन फाइनली आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द आई लेंस ये रेटिना पर आके इंसिडेंट होता है और यहाँ पर इसका इमेज फॉर्मेशन होता है। सो जैसे ही रेटिना पर ऑब्जेक्ट का इमेज बना बच्चों, तो हमें क्या देखना है कि ये जो डाइवर्जिंग लेंस है बच्चों, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, यहाँ से लाइट रे रिफ्रैक्ट हुआ, जब हम इसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर रहे हैं तो दे आर मीटिंग एट फोकस, दे आर मीटिंग एट फोकस ऑफ दिस लेंस। ये जो कॉनकेव लेंस है इसके फोकस पर आकर के यहाँ पर मिल रहा है, और ये जो फोकस है बच्चों, दिस इज द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। सो दिस इज द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। कहने का मतलब यह है कि जिस पर्सन को मायोपिया हुआ है उसका जो अधिक से अधिक डिस्टेंस तक देखने की एबिलिटी है, वह अधिक से अधिक डिस्टेंस जो होगा, जब हम उसे करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज करेंगे बच्चों, तो उस कॉनकेव लेंस के फोकल लेंथ के बराबर का उसका फार पॉइंट का डिस्टेंस होगा। सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी डील करेंगे आगे चल करके, तो वहां पर हमें इस कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम होंगे बच्चों, जब हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो वहां पर चीज़ों को सीखेंगे। बट एट दिस स्टेज ये जो डायग्राम है बच्चों, इस डायग्राम में आपको समझना यह है कि जो मायोपिक आई होता है उसके लिए यह केस है, इमेज बिफोर रेटिना बनता है, और जब हम दूर के ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाते हैं, तो जब नज़दीक लाते हैं बच्चों, तो जैसे ही उस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर क्लियरली बनता है तो हम उस पॉइंट को, उस डिस्टेंस को लेंस से मार्क कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मायोपिक आई। और फिर हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करते हैं बच्चों। बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस वी कैन वी कैन एडजस्ट द we can adjust the image of the object which are situated at very far away or at the distant position onto the retina of the eye, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं बच्चों। ये जो तीनों डायग्राम है इसको हमने यहाँ पर इसमें आपको ये जो कंटेंट है यहाँ पर इसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, तो आप यहाँ से इस चीज़ों को समझिए एक एक करके। मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स कंटेनिंग कॉनकेव लेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉनकेव लेंस को ही यूज करके, कॉनकेव लेंस को बच्चों डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस को यूज करके हम इस डिफेक्ट्स को ओवरकम करते हैं, अपने आंखों के चश्मे में कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, कॉनकेव लेंस यूज्ड फॉर करेक्टिंग मायोपिया शुड बी ऑफ सच अ फोकल लेंथ। अभी हम लोग फोकल लेंथ की बात कर रहे थे, ये जो कॉनकेव लेंस है बच्चों, ये जो कॉनकेव लेंस हमने यहाँ पर यूज किया है, इसका जो फोकल लेंथ होगा, इसका जो फोकल लेंथ होगा यही होगा ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक का जो दूरी है,
दिस इज फोकल लेंथ। तो the concave lens used for correcting myopia should be of such a focal length or power। बच्चों जब फोकल लेंथ को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो पावर भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, पावर इक्वल टू 1/f। सो or power that it produces a virtual image of the distant object laying at infinity at the far point of the myopic eye। यहाँ पर डायग्राम में वापस आते हैं, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं आपको वापस कि कॉनकेव लेंस को इस तरह से आई लेंस के सामने प्लेस करेंगे बच्चों, इसका जो फोकल लेंथ होगा, कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होगा बच्चों, दैट शुड एग्जैक्टली मैच with the far point of the myopic eye। far point of the myopic eye जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का और वैसे ऑब्जेक्ट का जो इन्फिनिटी पर प्रेजेंट है, इन्फिनिटी लोकेशन पर प्रेजेंट है, उसका वर्चुअल इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है? एट द फोकस ऑफ दिस कॉनकेव कॉनकेव लेंस, एट द फोकस ऑफ दिस कॉनकेव लेंस। ओके, सो आई होप सेकंड पॉइंट आपको समझ में आया होगा। एंड मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, द होल पर्पस ऑफ यूजिंग अ कॉनकेव लेंस हियर इज टू रिड्यूस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। बच्चों कॉनकेव लेंस का पावर जो होता है, कॉनकेव लेंस के केस में आप देख सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हम जा रहे हैं तो फोकल लेंथ एक्चुअल में जो होगा बच्चों वह नेगेटिव होगा, तो पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। जब फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी क्या होगा? जब फोकल लेस देन 0 है तो पावर भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ओवरऑल जो पावर होगा बच्चों वह कॉनकेव लेंस का नेगेटिव होगा, और आई लेंस का हाई कन्वर्जिंग पावर होने के कारण ही मायोपिया का प्रॉब्लम होता है। तो जो पॉजिटिव पावर है उसमें ये जो कॉनकेव लेंस है ये नेगेटिव पावर ऐड करेगा, और ओवरऑल कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस जो होगा वह डिक्रीज हो जाएगा। सो द होल पर्पस ऑफ यूजिंग कॉनकेव लेंस हियर इज टू रिड्यूस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। तो कन्वर्जिंग पावर को रिड्यूस करना होता है होल पर्पस। ठीक है बच्चों, और जैसे ही कन्वर्जिंग पावर हम रिड्यूस करेंगे तो लाइट रे यहाँ पर पहले कन्वर्ज करने की वजह यह थोड़ा दूर तक जाएगा और रेटिना पर जाकर कन्वर्ज करेगा, तो आई लेंस का यहाँ पर फोकल लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही आई लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज होगा तो पावर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट पॉइंट, द कॉनकेव लेंस यूज्ड हियर डिक्रीजेस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। जैसा मैंने आपको बताया फोकल लेंथ आई लेंस का बढ़ रहा है यहाँ पर, जब यह रेटिना पर इमेज बन रहा है, जब कॉम्पनसेशन हम कर रहे हैं, जब रेटिना पर इमेज बन रहा है तो ओवरऑल फोकल लेंथ बढ़ रहा है। इस आई लेंस के लिए फोकल लेंथ यह होगा। तो जब यह फोकल लेंथ बढ़ेगा, एफ ई कर दीजिए यहाँ पर, फोकल लेंथ ऑफ दिस आई लेंस, एंड एफ फॉर this concave lens, fc stands for focal length of this concave lens। Okay, so concave lens used here decreases the converging power of the eye lens and helps in forming the image of distant object on the retina of the myopic eye। इस केस में बच्चों जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो उसका इमेज रेटिना पर बन पाता है ड्यू टू द यूज ऑफ कॉनकेव लेंस। हाउ कॉनकेव लेंस इज हेल्पिंग अस टू फॉर्म द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना? बाय डिक्रीजिंग द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस, बाय डिक्रीजिंग द कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट पॉइंट्स वी हैव टू डिस्कस। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ। ये जो हमने कॉनकेव लेंस यूज किया है बच्चों, we have to calculate the focal length of this lens। so ये जो extra lens हमने यूज किया है बच्चों, this extra lens whatever we are using here, so for that we have to go for the calculation of calculation करना है यहाँ पर हमें। देख सकते हैं ये जो हमारे पास कॉनकेव लेंस हमने आई लेंस के सामने में प्लेस किया है बच्चों, इसका फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करना है। सो दिस इज द वर्चुअल फोकस, और इसका फोकल लेंथ बच्चों एफ से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ कॉनकेव लेंस टू करेक्ट मायोपिया। जब हम फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे इस लेंस का तो पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ कॉनकेव लेंस टू करेक्ट मायोपिया, यहाँ पर क्या करना है हमें? द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस नीडेड टू करेक्ट मायोपिया इन अ पर्सन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। कैसे फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे? तो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला के बारे में हमें पता है बच्चों, 1/v - 1/u = 1/f। दिस इज द लेंस फॉर्मूला। ओके,
सो यहाँ पर फोकल लेंथ जो है हमें कैलकुलेट करना है, दिस इज अननोन, दिस इज अननोन, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ। सो u और v जब हमें मालूम होगा तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। u यहाँ पर क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली कहाँ पर प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पर प्रेजेंट है, वहीं से पैरेलल रेज आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स कहाँ पर प्रेजेंट है, इन्फिनिटी पर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग क्या ले लेंगे बच्चों, u ले लेंगे इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टू बी टेकन एज इन्फिनिटी, और इमेज डिस्टेंस एक्चुअल में आप देख सकते हैं बच्चों, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसका इमेज इस कॉनकेव, हमें इस लेंस में देखना है, क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज इस कॉनकेव लेंस में कहाँ पर बन रहा है, तो वर्चुअल फोकस पर बन रहा है, वर्चुअल फोकस पर बन रहा है। और ये जो वर्चुअल फोकस है, इसका दूरी जो हमारा आई लेंस है उससे क्या है, तो वह दूरी जो है बच्चों, वह है फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई, जो कि अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होगा बच्चों, फार पॉइंट सभी लोगों का सेम नहीं हो सकता है, अलग अलग इफेक्ट ऑफ मायोपिया हो गया, इंटेंसिटी ऑफ मायोपिया होगा, तो अलग अलग पर्सन के लिए ये जो फार पॉइंट होगा बच्चों यह अलग अलग होगा। तो जिस पर्सन के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें देखना है कि यह जो ऑप्टिकल सेंटर है इससे कितना दूरी पर उसका फार पॉइंट है, तो जो भी फार पॉइंट की दूरी होगी बच्चों, उसी डिस्टेंस पर ये जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है इसका वर्चुअल इमेज बनना चाहिए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में, और वर्चुअल इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, और इसकी दूरी आई लेंस से क्या होगी बच्चों, तो उस मायोपिक आई के फार पॉइंट के बराबर का होगा। सो यहाँ पर v का सिलेक्शन करेंगे बच्चों, and the image distance v will be the distance of the person's far point, and that will differ from person to person, which is different for different person, जो कि अलग अलग होगा अलग अलग persons के लिए। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, कोई एक एक्स पर्सन है, और उस पर्सन का जो है फार पॉइंट जहाँ तक कि वो क्लियरली देख सकता है, मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, और मायोपिया का प्रॉब्लम है उसे, फार पॉइंट 40 सेंटीमीटर है, नज़दीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई पड़ती है, दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती हैं, फार पॉइंट 40 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें v क्या लेना पड़ेगा बच्चों, लेंस से लेफ्ट हम लोग डिस्टेंस जब कंसिडर करते हैं तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होता है, v विल बी -40 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा बच्चों वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए होगा, और नॉर्मल आई के लिए तो इन्फिनिटी होता है, मायोपिक आई इन्फिनिटी तक तो देख नहीं पा रहा है, ये फार पॉइंट तक ही देख रहा है, तो यहाँ पर हमें v जो है वो फार पॉइंट के बराबर लेना है, और u की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों, u विल बी टेकन एज इनफाइनाइट, और फोकल लेंथ हमें निकालना होगा, f वी हैव टू कैलकुलेट। सो हाउ टू कैलकुलेट, 1 by v, सो 1 by -40 minus 1 by u इनफाइनाइट इक्वल टू 1 by f, तो ये 1 by infinity 0, सो -1 by 40 इक्वल टू 1 by f, सो यहाँ से f इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर f की वैल्यू जो होगी बच्चों, f विल बी -40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ यहाँ पर हमें इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं आप, फोकल लेंथ जो है नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, क्योंकि ये जो लेंस है बच्चों यह कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर यहाँ से हमें पावर अगर कैलकुलेट करना है तो आसानी से हम पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट पावर इजिली। सो लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट द पावर। So we can calculate the power. Power is equal to 1 by f. So ये 40 सेंटीमीटर को बच्चों इसको हम लोगों को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा -40/100। सो दिस इज 1 अपॉन -40/100, सो दिस विल बिकम, इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, -100/40, सो 0 0 विल गो, 2 5 जा, 2 2 जा, so this is -5/2, so this is -2.5 diopter, so this is the power of this lens. Okay, so this is how we have to do. I hope you understood this concept, and definitely it is very easy. So in the upcoming video I will be discussing problem based on one or two numerical problem based on myopia, so that you can understand this concept more clearly.
but the content what I gave in this video, that is very very important for you. Please go through the video properly, watch the video repeatedly, try to understand each and every concept and make a regular and proper notes so that you can recall the concept whatever you are learning. So in this video, this much only. I will be making another video on the same concept with some numerical problems, and upcoming videos I will be keep on uploading. So in this video, this much only. Thank you. Thank you.